डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे हैं। 13.2 एक्सरसाइज में हम 2 क्लासेस किया है अभी तक। ओके, 6 क्वेश्चंस किया है। अब ये थर्ड क्लास है और जिस क्लास में 7, 8, 9 करेंगे। ओके, चलो देखिए क्या दिया है 7th क्वेश्चन में। गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, probability of A union B is equal to 3/5. Probability of B is small p. Small p means this is a constant line. The values are not given. They are asking us to find p if this A and B are mutually exclusive, if A and B are independent. Okay? Let us try to solve this. Okay, see, once again I will write, see, P of A is equal to 1/2, P of B is equal to small p. And P of A union B they have given 3/5. Okay. See, clearly they are mentioning, first part we will take, if both are mutually exclusive, if A and B are mutually exclusive, if A and B are mutually exclusive, see, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. Why? Probability of A intersection B is equal to 0. Okay, if both are mutually exclusive, then only this formula is going to apply. Okay, then proceed. Probability of A union B they have given 3/5 is equal to probability of A is 1/2 plus small p. Okay, that means small p you can find 3/5 minus 1/2. 6 minus 5, 1/10. See, 1/10 will be your answer. Okay, for first part. I am talking only about this first part. When mutually exclusive, then only this answer is valid. Go for second portion. Second portion, what they told? They told independent. A and B are independent. If both are independent, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Okay? Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. You see here probability of A they have given. Probability of B, see here probability of B means P you have found for this. But for this how we are going to do? See what I am going to do. You apply this formula. Why? Because this formula, probability of A intersection B, you see what I am writing now. Probability of A plus probability of B minus probability of A union B is equal to probability of A into probability of B. Is it correct? First you see. Why? Because the probability of A union B is equal to A intersection B will come, or else A intersection B means minus A union B will come. Okay, is it okay? Yes. Why? Because the probability of A union B you are having. Okay, then you proceed. Probability of A is how much? 1/2 plus probability of B you take as P only again minus 3/5. Okay, then what is this? Again you write 1/2 into probability of B means P, small p. Now only one variable you are having P. You can find P. Why? Because they are asking to find P only. You see 1/2 minus see 5, or else we will send that like this. You see what I am writing? P minus P/2. See, this is P/2. P/2 goes this side automatically minus P/2. P minus P/2 is equal to, okay, you see 3/5 minus 1/2. Is it okay? Why? Because this minus 3/2 going to become plus P/2 minus 1/2 is going to become. Okay, P minus P/2 means what? P/2. That's all. Why? Because 1 minus half. See, 6 minus 5, 1/10. But what about P? 2/10, that is equal to 1/5.
Understand? Okay. Let us go for next question. Okay. Question number 8 एक बार देखिए. Let A and B be the independent events. वो पहले ही बोल रहा है independent events है बोल के. Independent events बोल दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ अभी? Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. यही तो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहेगा तो. ठीक है, चलो ये फार्मूला में इस्तेमाल करना पड़ेगा अभी. ओके, चलो देखिए क्या बोल रहा है वो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया है. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. देखिए सीधी सी बात है. फर्स्ट पार्ट देखिए आंसर मैं क्या कर रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट 0.3 मतलब 3/10 इंटू 0.4 मतलब 4/10 दैट इज इक्वल टू 12/100 दैट इज इक्वल टू 0.12. यही तो है आंसर ये है ना, 0.12. फर्स्ट पोर्शन हो गया है. ओके, चलो सेकंड वाला आ जाओ. सेकंड वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिखो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना. हाँ चलो लिखो इसको. देखिए 3/10 ना, ये अभी ऐसा करो नहीं, 0.3 प्लस 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी आया 0.12 दैट इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.12. ठीक है, 70 में 12 58 करेक्ट है, 0.58. ओके, ये आंसर भी हो गया है सेकंड वाला. नेक्स्ट क्या करेंगे, थर्ड में आ जाओ. थर्ड पार्ट. हाँ देखिए थर्ड पार्ट क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा तो आपको, देखिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, ये फार्मूला है. देखिए वो अभी वो कॉन्सेप्ट अभी क्या बताने की क्या जरूरत है, अभी ऑटोमेटिकल आपको सामने है दोनों. ये मान दो अभी. ओके चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपको 0.12 मतलब 12/100 है ना. 0.12 मतलब 12/100 है. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया था हमने 4/10. देखिए ये 3 टाइम्स आएगा, ये 0 मतलब क्या हो गया 0.3 हो गया. 3/10 यही तो है 0.3. ओके, ये भी आपका आंसर आ गया है. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में जाओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ये सेम ए इंटरसेक्शन बी नहीं तो बी इंटरसेक्शन बी, ये दोनों सेम है. यहाँ नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आएगा. ओके, देखिए 12/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना बोला 3/10. 3/10 देखिए ये मार दो और ये मार दो मतलब 4/10 0.4. ये तो है 0.4. समझ में आया. ओके, चलो हम 9th क्वेश्चन में चलते हैं. चलो 9th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या दिया है. इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट, यहाँ इंडिपेंडेंट बोल के नहीं दिया ना, इंडिपेंडेंट बोल के नहीं दिया है, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए. अच्छा, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8. मुझे लगता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया. ठीक है चलो वो बाद में. लेकिन ये क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी. देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैंने, एक बार देखिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी मतलब फिर बी कॉम्प्लीमेंट. ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है ना. देखिए इसको फिर मैं क्या बदल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन रह के अलग अलग हुआ तो यूनियन रह के ओवरऑल हो जाएगा. फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैंने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना. हाँ मतलब अभी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता किया तो आ जाएगा आंसर. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. लेकिन इसको आप ब्रैकेट कर दो, 1 माइनस ये सब आना पड़ेगा. ओके चलो कर दो. दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस
देखिए अगर आपने 8 अगर एलसीएम लेते हो तो 4 2 टाइम जाएगा 2 प्लस 2 4 टाइम जाएगा 4 प्लस 8 1 टाइम जाएगा 1। ओके चलो आगे बढ़ो। दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, एक मिनट ये तो माइनस है लास्ट में, ये गड़बड़ हो गया नहीं तो। ओके देखिए 2 प्लस 4 6 माइनस 1 5 5/8। ओके 8 माइनस 5 3/8। यही तो है आंसर, समझा? ठीक है चलो हम ऐसा करते हैं, जिस क्लास बंद करके आगे 3 क्वेश्चन 10 11 12 ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।